Dear students, in the last video lecture, I discussed the reverse recovery characteristics of power diode. In this video lecture, I am going to discuss another member of family of power semiconductor devices, that is power BJT. So first let us see what is power BJT. So power BJT, it is a three-layer semiconductor device having two junctions. Here it has three layers and two junctions. If I am drawing a NPN transistor here, you see N, P, N transistor. So you can see that there are three layers and there are two junctions J1 and J2. Clear? Next, it has three terminals. Collector, emitter and base. Out of these three terminals, two terminals, collector and emitter terminals, are called main terminals, and base terminal is called control terminal. Base terminal is called control terminal. I hope you all have already gone through the lecture in prerequisites of power electronics. There I have already explained the principle of operation of bipolar junction transistor in lecture number 5 and 6. Clear? So BJT is a three-layer semiconductor device having two junctions. It has three terminals, collector, emitter and base. Base is a control terminal. So this is a NPN transistor, emitter, collector and base. So there are three terminals. Clear? So next, without explaining the principle of operation, I am going to draw the circuit diagram of BJT. I am going to draw circuit diagram of BJT and I am taking a common emitter configuration. So here you see, this is the symbol of BJT. If it is NPN transistor, then this will be the direction of arrow NPN, that means collector, emitter and base. So I am going to make a circuit. Here you see that this is the BJT. This is VCC. This is collector terminal. This is RC. This is emitter terminal. And I am connecting a supply at base terminal. This supply voltage is VB. This resistance is RB. Clear? So through this one, IC current will enter to the BJT. From here IE will come out and here the current will be IB. Base current will be IB. Now I am drawing the output characteristic of BJT. So output characteristics means graph of IC versus VCE. IC versus VCE. See, this is the voltage VCE at constant IB. BJT is a current control device. So the graph of output will be drawn at constant base current. So here I am drawing the graph of
See, this is current IC, this is voltage VCE. So what will be the graph? The graph will be like this one. Again, if you are changing the base currents, the graph will be, for different base currents there will be different curves. अलग अलग बेस करंट के लिए अलग अलग कर्व हमें मिल रहा है. ये रहा हमारा डिफरेंट बेस करंट्स के लिए कर्व्स. ये है IB1, सिमिलरली IB2, IB3, IB4, IB5, IB6, IB7. आप यहां पर जानते हैं कि IB7 इज ग्रेटर देन IB6 इज ग्रेटर देन IB1. क्लियर? अब यहां पर हम लोग रीजन्स को डिफाइन करते हैं. देखिए ये पार्ट हमारा जो ये पोर्शन है पूरा, ये एरिया किस चीज को बतला रहा है? दिस इज द सैचुरेशन रीजन. दिस इज द सैचुरेशन रीजन. दिस एरिया, दिस इज द कट ऑफ रीजन. This is the cutoff region and whole this portion is active region. This portion is active region. Clear? Saturation region, active region and cutoff region. अब यहां पर देखिए, हम यहां पर देख रहे हैं कि IC करंट ऑलमोस्ट जीरो है, यानी कुछ करंट यहां पर फ्लो कर रहा है जबकि हमारा बेस करंट नहीं है. इस करंट को कहा जाता है लीकेज करंट. दिस करंट इज कॉल्ड लीकेज करंट. दिस करंट इज कॉल्ड लीकेज करंट. क्लियर? अब हम लोग देखिए, जो ये पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को एज ए स्विच ऑपरेट कराते हैं. तो एज ए स्विच ऑपरेट कराने का मतलब है कि हमारा या तो सैचुरेशन रीजन में वर्क करेगा या फिर कट ऑफ रीजन में वर्क करेगा. तो जैसा कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लेक्चर में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि पहला अगर हम एक्टिव रीजन की बात करें, एक्टिव रीजन की अगर हम बात करें, एक्टिव रीजन, तो एक्टिव रीजन में क्या होता है? ट्रिक याद रखिए, EFCR. इसका मतलब एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होगा, तब ये एक्टिव रीजन में वर्क कर रहा हो. अगर हम दूसरा सैचुरेशन रीजन की बात करें, सैचुरेशन रीजन में दोनों ही फॉरवर्ड बायस्ड होता है, यानी कि एमीटर एंड कलेक्टर बोथ आर फॉरवर्ड बायस्ड. और तीसरा है हमारा कट ऑफ रीजन. थर्ड वन इज कट ऑफ रीजन. तो कट ऑफ रीजन में क्या होता है? एमीटर और कलेक्टर दोनों ही रिवर्स बायस में वर्क करता है. अब इस कंसेप्ट पर, यहां पर देखिए, इस कंसेप्ट पर 2 बार गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. वंस द क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन गेट 2004 एंड सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन गेट 2015. वहां पर पूछा गया था, एक बीजेटी है जो सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट कर रहा है, आप बताइए कि कौन से जंक्शंस फॉरवर्ड बायस होंगे, कौन से जंक्शंस रिवर्स बायस होंगे. तो वहां पर आपका यही आंसर करेक्ट था कि एमीटर, बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस था और कलेक्टर टू बेस जंक्शन यहां पर फॉरवर्ड बायस्ड था, यानी कि दोनों जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस्ड था. क्लियर? तो ये रहा हमारा बीजेटी का कैरेक्टरिस्टिक. क्लियर? अब हम लोग यहां पर लोड लाइन को ड्रॉ करते हैं. लेट अस ड्रॉ द लोड लाइन ऑफ बीजेटी. तो लोड लाइन का हम लोग सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं कि क्या है लोड लाइन का इक्वेशन, फिर हम लोग वहां से पॉइंट्स को लिखेंगे, पॉइंट्स को वहां पर पॉइंट आउट करेंगे. तो देखिए लोड लाइन का इक्वेशन क्या है. लोड लाइन, तो लोड लाइन है हमारा इक्वेशन. यहां देखिए करंट IC का अगर आप इक्वेशन लिखेंगे, करंट IC का, तो दिस पोटेंशियल इज VCC एंड दिस पोटेंशियल इज VCE. क्योंकि ये पार्ट हमारा ग्राउंड है, यहां का पोटेंशियल क्या है? VCE, और यहां का पोटेंशियल क्या है इस पॉइंट का? VCC. सो इफ यू राइट द एक्सप्रेशन फॉर करंट IC, so current IC will be equal to VCC minus VCE divided by RC.
you have to apply only the basic concepts of electrical engineering. It is more than enough to discuss to deal with any circuits of analog electronics. तो यहां पर देखिए IC is equal to VCC minus VCE divided by RC. अब हमें दो पॉइंट को लिखना है. एक पॉइंट लिखना है कि जब VCE 0 हो तो हम लिखते हैं if VCE is equal to 0, then you will get IC will be equal to what? VCC upon RC. क्लियर? दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूं यहां पर. दूसरा पॉइंट में हम लोग यहां पर देखते हैं IC को 0 कर देते हैं. If IC is made 0, then what will happen? Then VCE will be equal to VCC. Then VCE will be equal to VCC. तो हम लोग यहां पर दो पॉइंट्स को बना रहे हैं. पहला पॉइंट देखिए VCE 0 है, यानी कि वर्टिकल एक्सिस की बात करिए, और वर्टिकल एक्सिस में जब VCE 0 है तो हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा? VCE जब 0 है तो IC की वैल्यू क्या है? VCC बाय RC. तो हम लोग एक ये पॉइंट मान लेते हैं. ये पॉइंट है हमारा VCC डिवाइडेड बाय RC. क्लियर? और दूसरा पॉइंट हमें यहां पर मिल रहा है VCE इज इक्वल टू VCC. VCE इज इक्वल टू VCC. तो मैं ये दोनों पॉइंट को मिला दे रहा हूं. तो ये जो लाइन बना है, दिस लाइन इज कॉल्ड लोड लाइन. दिस लाइन इज कॉल्ड लोड लाइन. नाउ इफ यू डिफाइन लोड लाइन, अगर लोड लाइन को आप डिफाइन करना चाहें तो आप एक लाइन में से लिख सकते हैं, इट इज द locus of all the operating points of BJT. It is the locus of all the operating points of bipolar junction transistor. It is the locus of all the operating points of bipolar junction transistor. Clear? अब हम लोग देखते हैं यहां पर सेचुरेशन करंट को समझते हैं, क्योंकि हमारा जो ट्रांजिस्टर है, जब ये ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा, ऑन रहने का मतलब ये सेचुरेशन रीजन में ऑपरेट करेगा. तो जब ये सेचुरेशन रीजन में ऑपरेट करेगा तो हम लोग सेचुरेशन करंट को समझते हैं कि सेचुरेशन करंट क्या है. क्लियर? तो देखिए यहां पर सेचुरेशन करंट को देखते हैं हम लोग. इन सेचुरेशन हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा सर्किट बनाकर समझ लेते हैं कि सेचुरेशन में कैसा बिहेव करता है बीजेटी. इस सर्किट से हम लोग देखते हैं. जब सेचुरेशन में हमारा होता है, आप ये कह सकते हो, आपने यहां रेजिस्टेंस लगाया, यहां आपने सप्लाई दिया है, ये इस तरह से कनेक्टेड है. जब ये सेचुरेशन रीजन में है तो आप ये कह सकते हो कि ये ऑलमोस्ट ये दोनों शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करता है. कुछ यहां पर वोल्टेज ड्रॉप आता है प्लस माइनस VC, कुछ 1 वोल्ट का एक ड्रॉप आता है, पोटेंशियल ड्रॉप, बाद बाकी ऑलमोस्ट शॉर्ट सर्किट होता है. इसलिए हम लोग इसको एज ए स्विच की तरह मान लेते हैं कि जब ये ऑफ था तो ये पूरा का पूरा आपका यहां से करंट नहीं फ्लो करता है, और जब ये ऑन है तो ये डायरेक्ट करंट कलेक्टर टू एमीटर फ्लो करता है. यानी जो हमने ये जो देखा था यहां पर NPN, तो यहां से यहां डायरेक्ट करंट इस तरह से फ्लो करता है कलेक्टर टू एमीटर जब ये सेचुरेशन रीजन में रहता है. और ये जब कट ऑफ रीजन में रहता है यहां से करंट फ्लो नहीं करता है. क्लियर? तो हम यहां पर समझना चाहिए, हमें समझना है कि यहां पर कुछ ना कुछ सेचुरेशन के टाइम में कुछ ना कुछ वोल्टेज यहां पर रहता है. उस वोल्टेज को हम मान लेते हैं VCES, सेचुरेशन वोल्टेज VCES. क्लियर? और जो करंट सेचुरेशन के टाइम में फ्लो करेगा उस करंट को हम नाम दे देंगे ICS, दैट इज सेचुरेशन करंट. ICS will be saturation current. क्लियर? तो अब देखिए हम लोग यहां पर इक्वेशन को अगर हम लिखें, इफ यू राइट द इक्वेशन अगेन, तो यू कैन राइट द इक्वेशन ICS will be equal to VCC minus VCES divided by RC. और जो ये RC है, इस RC को ही आप लोड रेजिस्टेंस कह सकते हैं, क्योंकि यही आपका लोड है जो कि कलेक्टर टर्मिनल के क्रॉस आपने कनेक्ट किया है, यही आपका लोड है. दैट्स व्हाई इन सम बुक यू कैन आल्सो सी इट इज रिटन RL इंस्टेड ऑफ राइटिंग RC, दे आर राइटिंग RL बिकॉज दिस इज द लोड रेजिस्टेंस.
तो सेचुरेशन करंट ICS हमें क्या मिलेगा, VCC माइनस VCES डिवाइडेड बाय RC। यानी कि अब आप इस लोड को चेंज कर रहे हैं, इफ यू आर चेंजिंग दिस लोड सो दिस सेचुरेशन करंट विल बी चेंजिंग, इफ यू आर चेंजिंग दिस लोड देन दिस सेचुरेशन करंट विल बी चेंजिंग। अब हम लोग देखिए कि ट्रांजिस्टर को कंट्रोल कौन करता है। ट्रांजिस्टर को कंट्रोल करने वाला एकमात्र है आदमी, वो कौन है, बेस है। ये बेस ही ट्रांजिस्टर को कंट्रोल करता है, और बेस का कंट्रोल का मतलब ये बेस करंट, दिस बेस करंट विल डिसाइड, दिस बेस करंट इज गोइंग टू डिसाइड द रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ये बेस करंट किस तरह से डिसाइड करता है, तो हम लोग यहां पर एक और फॉर्मूला लिख रहे हैं, IBS will be equal to ICS divided by beta। IBS बेस saturation current IBS is equal to ICS divided by beta, क्योंकि बीटा इक्वल टू आप क्या जानते हैं, बीटा इज इक्वल टू IC डिवाइडेड बाय IB। तो यहां से IBS लिखेंगे ICS डिवाइडेड बाय बीटा। तो यहां पर IBS क्या है, IBS है यहां पर हमारा मिनिमम करंट, मिनिमम बेस करंट, minimum base current required to drive the BJT in saturation। minimum base current required to drive the BJT in saturation is called IBS। तो जब IBS करंट हम लोग यहां पर लिख चुके हैं ICS डिवाइडेड बाय बीटा, क्लियर। अब हम लोग यहां पर एक ओवर ड्राइव फैक्टर को डिफाइन कर रहे हैं। नाउ आई एम डिफाइनिंग ओवर ड्राइव फैक्टर। तो ओवर ड्राइव फैक्टर क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। ओवर ड्राइव फैक्टर देखिए यहां पर, ओवर ड्राइव फैक्टर, यहां पर हम लोग ओवर ड्राइव फैक्टर को समझते हैं। ओवर ड्राइव फैक्टर क्या है, क्लियर। तो ओवर ड्राइव फैक्टर देखिए क्या होता है, ओवर ड्राइव फैक्टर ODF इट इज इक्वल टू IB डिवाइडेड बाय IBS। ODF इज इक्वल टू IB डिवाइडेड बाय IBS। IB बेस करंट है और IBS है रिक्वायर्ड बेस करंट टू ड्राइव द पावर डायोड इन सैचुरेशन। अब क्या कहा जा रहा है, अब देखिए कहा जा रहा है इफ ODF is greater than 1, if ODF overdrive factor is greater than 1 then you can say IB is greater than IBS। और IB is greater than IBS अगर होगा तभी आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करेगा, तभी आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करेगा। क्योंकि जो मिनिमम बेस करंट चाहिए होता है सैचुरेशन में ड्राइव करने के लिए बीजेटी को, उससे अधिक जब आप बेस करंट प्रोवाइड करेंगे तब आपका बीजेटी सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करेगा, क्लियर। तो ये रहा सैचुरेशन। दूसरा कह रहा इफ ओवर ड्राइव फैक्टर इज लेस देन 1 इट मींस IB इज लेस देन IBS। और अगर ऐसा हुआ कि सैचुरेशन करंट से कम करंट आप पहुंचा रहे हो, बेस जो है, तो वो आपका क्या करेगा, एक्टिव रीजन में वर्क कराएगा, देन योर बीजेटी विल वर्क इन एक्टिव रीजन। तो ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। अब ODF की वैल्यू क्या होती है, तो ODF आपका रहता है, ODF आपका रहता है मैक्सिमम 4 to 5। ODF जो प्रैक्टिकली ट्रांजिस्टर में लिया जाता है वो ODF होता है 4 to 5 ओवर ड्राइव फैक्टर, क्लियर। तो ये रहा हमारा बीजेटी का, क्लियर। अब हम लोग यहां पर जब इन सारे इक्वेशंस को हमने देख लिया तो अब हम लोग समझते हैं कि हमारा बीजेटी अगर सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि बीजेटी में भी क्या है, रेजिस्टेंस है और उससे होकर करंट फ्लो कर रहा है। इफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए रेजिस्टेंस सो देयर विल बी सम पावर डिसिपेशन, देयर विल बी सम पावर लॉस। अब हम लोगों को उस पावर लॉस को देखना है, वी हैव टू राइट द इक्वेशन फॉर पावर लॉस ऑफ बीजेटी। सो व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर पावर लॉस ऑफ बीजेटी, सो हियर यू सी इक्वेशन फॉर पावर लॉस ऑफ बीजेटी
पावर लॉस इन बीजेटी। तो बीजेटी के पावर लॉस का अगर आप इक्वेशन लिखें, ये इक्वेशन क्या होगा, P विल बी इक्वल टू, अब देखिए आउटपुट वोल्टेज क्या था, VCE इंटू उसके थ्रू करंट कितना फ्लो कर रहा था, IC, एक पोर्शन हुआ, प्लस बेस के टर्मिनल पर अगर आएंगे तो बेस एमीटर वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे थे VBE इंटू इसके थ्रू बेस के थ्रू करंट जा रहा था IB। तो P इज इक्वल टू VCE इंटू IC प्लस VBE इंटू IB। अब आपको दिखने को मिलेगा कि ये वैल्यू आपको बहुत कम नेग्लिजिबल रहता है, क्योंकि बेस करंट की वैल्यू IC के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। आपको कहीं कहीं सिर्फ यही पोर्शन दिखने को मिलेगा और कहीं पर आपको ये दोनों का टोटल मिलेगा। तो एक्चुअल में ये दोनों टोटल ही पावर लॉस आपको लिखना होता है कि कितना पावर लॉस एक बीजेटी में हो रहा है। क्लियर? तो ये रहा हमारा पावर लॉस इन बीजेटी। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बीजेटी, दैट इज स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ लेट अस डिस्कस द स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीजेटी। तो स्विचिंग का मतलब हम लोग बीजेटी को ऑन कर रहे हैं और ऑफ कर रहे हैं। तो जब ऑन और ऑफ कर रहे हैं उस समय का स्विचिंग बिहेवियर हमें देखना है। हम लोग लिख रहे हैं स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीजेटी। तो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बीजेटी का, इसको हम लोग देखते हैं। क्लियर? तो देखिए यहां पर कैरेक्टरिस्टिक की जब बात होती है हमें ग्राफ प्लॉट करना होता है। हम लोग देखिए जो सबसे पहला ग्राफ प्लॉट करेंगे, हम यहां पर एक सर्किट बना रहे हैं। फिर से ये रहा हमारा RB, this is IB, this is RC, this is IC, this is VCC, VB। क्लियर? तो हम लोग पहला जो एक्सिस शो कर रहे हैं, पहला मैं शो कर रहा हूं यहां पर बेस वोल्टेज का, यानी हम मान लेते हैं कि बेस वोल्टेज पर हम लोग इस तरह का एक रेक्टेंगुलर पल्स दे रहे हैं। यहां पर क्या दे रहे हैं बेस वोल्टेज पर? बेस वोल्टेज पर एट बेस टर्मिनल यू आर अप्लाइंग ए रेक्टेंगुलर पल्स, you are applying a rectangular pulse at the base terminal। क्लियर? अब एक प्योर डीसी नहीं देकर रेक्टेंगुलर पल्स दे रहे हैं आप बेस टर्मिनल पर। तो आपका कहना होगा सर ये रेक्टेंगुलर पल्स क्यों दिया जा रहा है, आप क्यों नहीं प्योर डीसी दे रहे हो? उसका कारण ये है कि हम लोगों को यहां पर स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइन करना है। स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ऑन हो ऑफ हो। तो ऑफ कब होगा? जब यहां का सप्लाई रिवर्स होगा या सप्लाई जीरो होगा। इसलिए हमने यहां पर एक पल्स लिया है, रेक्टेंगुलर पल्स लिया है। क्लियर? ये रहा हमारा VB। तो जब ये बेस वोल्टेज VB है तो हम लोग अब बेस के टर्मिनल के थ्रू क्या करंट फ्लो करेगा, उस करंट का हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। क्लियर? जो करंट फ्लो करेगा उस करंट का हमें ग्राफ प्लॉट करना है। मैं उस करंट का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। तो देखिए करंट किस तरह से वेरी करेगा बेस टर्मिनल में। If you are increasing the base voltage, the current will also be increased। तो करंट हमारा इस तरह से चलेगा, करंट हमारा इस तरह से चलेगा, बीजेटी हमारा ऑन होगा और करंट इस तरह से बढ़ेगा। आप यहां पर बेस के क्रॉस वोल्टेज बढ़ा रहे हो, दैट मीन्स इसके थ्रू करंट जो एंटर कर रहा है वो करंट का अमाउंट भी उसी वोल्टेज को फॉलो करेगा। नाउ दिस वोल्टेज हैज बीन रिवर्स्ड। एक टाइम आ रहा है जबकि वोल्टेज आपका क्या हो जा रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो जैसे ही यहां पर बेस टर्मिनल पर वोल्टेज रिवर्स होगा, करंट भी रिवर्स हो जाएगा, करंट विल आल्सो बी रिवर्स्ड। अब आप कहोगे सर ये करंट यहां रिवर्स कैसे हो सकता है ये बेस टर्मिनल पर? तो यहां पर कुछ टाइम के लिए करंट रिवर्स हो रहा है। उसका कारण क्या है? आप जानते हैं कि जब यहां पर बेस टर्मिनल के थ्रू सप्लाई आप दे रहे हैं तो यहां पर भी चार्ज स्टोर हुआ था। अब जो चार्ज कैरियर्स है वो स्टोर्ड चार्ज कैरियर्स को रिमूव करने के लिए बेस टर्मिनल क्या करेगा, वो बेस टर्मिनल रिवर्स करंट कंडक्ट करेगा। तो बेस करंट क्या कर रहा है, रिवर्स करंट कंडक्ट कर रहा है। यहां देखिए कुछ देर के लिए रिवर्स करंट कंडक्ट किया और इसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे ये करंट डीके करके
जीरो हो जाएगा। धीरे धीरे ये करंट डिके करके जीरो हो जाएगा। दिस इज बेस करंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आप लोग स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को यहां बहुत ध्यान से देखें। क्लियर? तो ये रहा हमारा बेस करंट का। ये एरिया क्या बतला रहा है? रिमूविंग stored charge carriers, removing stored charge carriers, stored charge carriers को रिमूव किया जा रहा है। तो ये रहा हमारा एरिया। नेक्स्ट है हमारा, अब हम लोग बीजेटी का आउटपुट वोल्टेज आईसी और वीसी आउटपुट वोल्टेज और करंट आईसी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर मैं पहले आईसी का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, करंट आईसी। आप देखिए जब बीजेटी कंडक्ट नहीं कर रहा था, एट दैट टाइम आईसी वाज जीरो। नाउ व्हेन यू आर गिविंग द सप्लाई अक्रॉस द बेस टर्मिनल, सो व्हेन यू गिव द सप्लाई अक्रॉस बेस टर्मिनल, here the BJT starts conducting, and once the BJT start conducting, IC will start increasing, IC will start increasing। तो IC कुछ इस तरह से इंक्रीज करेगा, IC कुछ इस तरह से इंक्रीज करेगा और IC की वैल्यू बढ़ा, और यहां से क्या होगा, IC हल्का हल्का घटना शुरू करेगा। क्लियर? यहां देखो धीरे धीरे घटेगा। अब क्या होगा कि आपका बेस करंट रिवर्स हो ही चुका था, बेस करंट आपका डिक्रीज होने लगा। तो बेस करंट डिक्रीज होने का मतलब अब हमारा ट्रांजिस्टर ऑफ हो रहा है। तो जब हमारा ट्रांजिस्टर ऑफ हो रहा है, ऑफ होने का मतलब आप देखोगे करंट क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होकर यहां पर किसी वैल्यू पर आ जाएगा, और इसके बाद करंट इस तरह से चलेगा ऑफ पीरियड में। ऑफ पीरियड में इस तरह से करंट चलेगा, जो कि एक लीकेज करंट आपका फ्लो करता है। क्लियर? तो ये रहा हमारा बीजेटी का करंट का कैरेक्टरिस्टिक आईसी का। दिस इज द ग्राफ ऑफ आईसी, कलेक्टर करंट। क्लियर? अब हम लोग आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ देखते हैं, वीसी प्लस माइनस वीसी का अगर आप ग्राफ देखें तो वीसी क्या होगा, करंट बढ़ना स्टार्ट हुआ, यानी कि ये सैचुरेशन मोड में आने लगा बीजेटी। जब सैचुरेशन मोड में बीजेटी आने लगा तो ये वोल्टेज क्या होगा, दिस वोल्टेज विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। पहले इसके अक्रॉस बहुत अधिक वोल्टेज था, इससे करंट नहीं फ्लो कर रहा था। अब इसे करंट फ्लो करने लगा, यह एज शॉर्ट सर्किट वर्क करने लगेगा। इसका मतलब इसका वोल्टेज पहले ज्यादा था, अब क्या होगा, ये वोल्टेज इस तरह से कम होगा, और यहां पर भी एक स्मॉल वोल्टेज जो रहेगा आपको हमेशा रहेगा, वो वोल्टेज आपका यहां पर बना हुआ है, वो वोल्टेज आपका यहां पर बना हुआ है। अब देखिए यहां पर करंट, व्हेन द करंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, अगेन द वोल्टेज विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। नाउ यू विल गेट दिस वोल्टेज, और फिर आपका इस तरह से चलेगा। तो ये जो कर्व रहा हमारा, ये कर्व हमें बतला रहा है VCE का, VCE का ये कर्व बतला रहा है VCE। क्लियर? ये कर्व आपको VCE का बतला रहा है। क्लियर? अब हम लोग ऑन और ऑफ का प्रोसेस देखते हैं। यहां पर देखिए ये जो पहला कर्व है, यहां पर करंट इंक्रीज कर किया, वोल्टेज डिक्रीज किया, तो ये प्रोसेस में क्या हो रहा था, ये ऑन हो रहा था, इस प्रोसेस में ये ऑन हो रहा था। अब देखिए यहां से यहां जो टाइम है हमारा, इस टाइम को कहा जाता है TS, स्टोरेज टाइम। दूसरा टाइम है हमारा, ये हमारा स्टोरेज टाइम, ये हमारा फॉल टाइम। यहां पर करंट डिक्रीज किया है तो TF फॉल टाइम कहा जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड टेल टाइम, TT, स्टोरेज टाइम, फॉल टाइम, टेल टाइम। और ये तीनों मिलाकर क्या होता है, T ऑफ, कंप्लीट T ऑफ। यहां पर ऑफ था, और ये रहा आपका कंप्लीट T ऑन, ये था आपका कंप्लीट T ऑन, ये था हमारा कंप्लीट T ऑन, ये हमारा कंप्लीट T ऑफ। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं T ऑफ को, T ऑफ इज इक्वल टू TS प्लस TF प्लस TT। तो हमारा TS क्या है, TS इज स्टोरेज टाइम। स्टोरेज टाइम क्या होता है, स्टोरेज टाइम में देखिए करंट रिड्यूस होकर 100% से कितना होता है, 90% होता है। करंट फॉल्स फ्रॉम 100% टू 90%, दिस इज कॉल्ड द स्टोरेज टाइम। नेक्स्ट है TF, फॉल टाइम, TF इज कॉल्ड फॉल टाइम।
तो ये फॉल टाइम का मतलब राइज टाइम का जस्ट अपोजिट, राइज टाइम 10% टू 90%, सो फॉल टाइम विल बी 90% टू 10%। तो यहां पर ये क्या होगा 90% टू 10%। थर्ड वन इज टेल टाइम टीटी। तो टेल टाइम क्या होता है, टेल टाइम, तो टेल टाइम होता है हमारा, ये देखिए टेल टाइम में कहीं कहीं ग्राफ इस तरह से चलता है, ये ऑलमोस्ट 0 के बराबर होता है। तो ये देखिए टेल टाइम में होता है 10% टू 0%, 10% टू 0%। तो दिस इज द स्विचिंग बिहेवियर ऑफ बीजेटी, दिस इज द स्विचिंग बिहेवियर ऑफ बीजेटी। तो इसका अब एक कंक्लूजन हम लिख रहे हैं ताकि आपको कहीं न कहीं एग्जामिनेशंस में पूछे गए सवाल पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप देखिए अगर कोई कर्व आपको दिया रहेगा, आपको पहचानना होगा कि उसमें से कौन सा टर्न ऑन का कर्व है, कौन सा टर्न ऑफ का कर्व है। तो आप देखिए ड्यूरिंग टर्न ऑन में लिख रहा हूं, ड्यूरिंग टर्न ऑन, टर्न ऑन का मतलब आप ये समझ लो कि ये टर्मिनल आपका शॉर्ट होने जा रहा है और ये करंट बहुत ज्यादा फ्लो करेगा, ये करंट बहुत ज्यादा फ्लो करेगा। तो टर्न ऑन के टाइम में क्या होता है, आईसी इंक्रीज करता है और वीसी डिक्रीज करता है। ये आपको कहीं भी किसी कर्व में दिखे, इसका मतलब ये कर्व आपका टर्न ऑन का है। दूसरा लिख रहा हूं ड्यूरिंग टर्न ऑफ, ड्यूरिंग टर्न ऑफ, तो टर्न ऑफ में ठीक इसके अपोजिट होगा, आईसी विल बी डिक्रीज्ड एंड वीसीई विल बी इंक्रीज्ड, आईसी विल बी डिक्रीज्ड एंड वीसीई विल बी इंक्रीज्ड। क्लियर? तो ये रहा टर्न ऑन और दूसरा टर्न ऑफ का कर्व। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीजेटी। तो जब हम स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीजेटी को समझ चुके हैं, अब एक और टॉपिक इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज सेफ ऑपरेटिंग एरिया ऑफ बीजेटी। सेफ ऑपरेटिंग एरिया ऑफ बीजेटी। सो व्हाट इज सेफ ऑपरेटिंग एरिया ऑफ बीजेटी? अगर हम इस टर्म का ही नाम से सुने कि सेफ ऑपरेटिंग एरिया, इसका मतलब बीजेटी के सेफ ऑपरेशन के लिए कुछ एरिया, कुछ पॉइंट्स डिफाइन किए गए हैं और हम अगर किसी बीजेटी को ऑपरेट करा रहे हैं, एचपीएन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, हमें उस सेफ ऑपरेटिंग एरिया को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हम लोग यहां लिख रहे हैं सेफ ऑपरेटिंग एरिया ऑफ बीजेटी, सेफ ऑपरेटिंग एरिया ऑफ बीजेटी। तो सेफ ऑपरेटिंग एरिया का मतलब ये बतला रहा है कि बीजेटी का जहां सेफ ऑपरेशन होगा उसी में आपको बीजेटी को ड्राइव कराना है, सेफली ड्राइव कराना है बीजेटी को आपको। तो मैं देखिए यहां पर जो सेफ ऑपरेटिंग एरिया का कर्व बनता है, ये कर्व बनता है एल एन आईसी वर्सेस एल एन वीसी। यानी कहीं कहीं आप देखेंगे आईसी वर्सेस वीसी कर्व दिया रहेगा, लेकिन एक्चुअल में जो सेफ ऑपरेटिंग एरिया का कर्व बनता है, ड्रॉ किया जाता है, दैट कर्व इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन लॉगरिथमिक स्केल। आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस दोनों ही लॉगरिथमिक स्केल पर ड्रॉ किया जाता है। क्लियर? तो सेफ ऑपरेटिंग एरिया देखिए किन किन चीजों का ध्यान में रखते हुए सेफ ऑपरेटिंग एरिया को डिफाइन किया गया है। तो मैं इसके लिए सबसे पहले सेफ ऑपरेटिंग एरिया को प्लॉट कर दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करेंगे सेफ ऑपरेटिंग एरिया को। देखिए जब एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हमारे पास है तो हम लोग उस ट्रांजिस्टर के बारे में जानते हैं कि एक मैक्सिमम करंट की लिमिट तक उसे ऑपरेट करा सकते हैं, उससे बियॉन्ड हम ऑपरेट नहीं करा सकते हैं। तो एक करंट की मैक्सिमम लिमिट होगी। तो यहां पर देखिए ये मैं करंट के मैक्सिमम लिमिट को सबसे पहले ड्रॉ कर दिया। दिस इज द मैक्सिमम करंट लिमिट, दिस इज द मैक्सिमम करंट लिमिट। ठीक है? अब देखिए ये मैक्सिमम करंट लिमिट है। दूसरा देखिए इसका क्या होना चाहिए, वोल्टेज का भी एक फिक्स मैक्सिमम वोल्टेज होना चाहिए, उससे बियॉन्ड वोल्टेज में ऑपरेट आप नहीं करा सकते हैं किसी बीजेटी को। तो ये देखिए मैं बना रहा हूं वोल्टेज के लिए बाउंड्री, ये है मैक्सिमम वोल्टेज लिमिट, मैक्सिमम वोल्टेज लिमिट। अब इसके बाद देखिए दो कर्व और आपको बनते हैं, दो बाउंड्रीज और बनते हैं, एक मैक्सिमम पावर के लिए बनता है, क्लियर, और एक सेकेंड ब्रेकडाउन करके एक कंसेप्ट है उसके लिए। ये है मैक्सिमम पावर
लिमिट, और ये है आपका सेकेंड ब्रेकडाउन। दिस इज द सेकेंड ब्रेकडाउन। ये आपका मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम पावर, सेकेंड ब्रेकडाउन एंड मैक्सिमम वोल्टेज लिमिट। तो इन चारों चीजों का आपको, जब आप एक इंजीनियर बीजेटी को ड्राइव कर रहे हैं, आपको बीजेटी को हमेशा इसी एरिया में ऑपरेट कराना है। यू हैव टू ऑपरेट द बीजेटी इन दिस एरिया ओनली इफ यू आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अब हम लोग यहां पर इन सारे चीजों को समझते हैं। मैक्सिमम करंट लिमिट आप समझते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज लिमिट आप समझते हैं। आपको समझना है मैक्सिमम पावर लिमिट, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड सेकेंड ब्रेकडाउन। यू हैव टू अंडरस्टैंड सेकेंड ब्रेकडाउन। तो हम लोग मैक्सिमम पावर लिमिट को समझते हैं। देखिए पावर क्या होता है, वी सी इंटू आई सी। अगर आप बेस के क्रॉस पावर डिसिपेशन को नेग्लेक्ट कर दिए हो तो क्लियर। अब हम लोग यहां पर लॉग लेते हैं, LNP विल बी इक्वल टू VC, सॉरी हियर यू कैन राइट LN VC प्लस LN IC प्लस LN IC। क्लियर। अब हम लोग देखिए यहां पर एक मैक्सिमम पावर की अगर हम बात करें, इफ P इज इक्वल टू P मैक्स, तो क्या होगा LN P मैक्स इक्वल टू LN VC प्लस LN IC। तो आप यहां से लिख सकते हैं P मैक्स की कोई एक मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन की गई होगी। सो LN P मैक्स इज ए कांस्टेंट टर्म। आप यहां से लिख सकते हैं LN VC प्लस LN IC इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यानी ये इक्वेशन किस चीज का आ रहा है, पावर का, x प्लस वाई इक्वल टू कांस्टेंट, x प्लस वाई इक्वल टू कांस्टेंट। सो वी कैन से y इक्वल टू c माइनस x। तो y इक्वल टू c माइनस x का कर्व कैसा बनता है, निगेटिव स्लोप। इसलिए ये कर्व मिला है हमारा मैक्सिमम पावर का कर्व, यही मिला है हमारा निगेटिव स्लोप वाला। क्लियर। तो मैक्सिमम पावर को आप समझ चुके हैं। नाउ द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सेकेंड ब्रेकडाउन। आपको समझना है सेकेंड ब्रेकडाउन। आप सबसे पहले इस बात को नोट कर लें कि जितने भी डिवाइस की फैमिली है, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस की फैमिली है, उसमें सेकेंड ब्रेकडाउन सिर्फ और सिर्फ पावर बीजेटी में ही होता है। लिखिए इन पावर बीजेटी ओनली, पावर बीजेटी में ही सेकेंड ब्रेकडाउन होता है। अब सेकेंड ब्रेकडाउन का कंसेप्ट क्या है, आप जो कलेक्टर करंट लिखते हैं आईसी, अगर आप प्रीरिक्विजिट्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में दिए गए लेक्चर को याद कीजिए, बीजेटी का लेक्चर नंबर 5, तो वहां पर लिखते हैं आप आईसी इक्वल टू अल्फा आई प्लस आईसी बीओ। आईसी बीओ क्या है, इसको रिवर्स लीकेज करंट भी कहा जाता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट भी कहा जाता है। अब यहां पर मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आईसी बीओ, मैं ये लिख रहा हूं बीजेटी हैज निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड ICBO doubles for every 10 degree centigrade rise in temperature. ICBO doubles for every 10 degree centigrade increase rise in temperature. बीजेटी का निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, और ICBO ये जब टेम्परेचर अगर 10 डिग्री से राइज होता है तो आईसीबीओ इंक्रीज करता है। ठीक है, ये मैं यहां एक्सप्लेन नहीं करूंगा, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर। तो अब जब आईसीबीओ इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, यानी आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर के कारण क्या होगा, आईसीबीओ इंक्रीज करेगा। आईसीबीओ इंक्रीज करेगा मतलब क्या होगा, आईसी इंक्रीज करेगा, और जब आईसी इंक्रीज करेगा तो आईसी इंटू वीसी क्या है, पावर लॉस। तो यहां से क्या होगा कि जो पावर लॉस है वो इंक्रीज करेगा। पावर लॉस यानी हीट डिसिपेशन बढ़ेगा। अब देखिए जब हीट डिसिपेशन बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, इस हीट डिसिपेशन यानी पावर लॉस बढ़ने के कारण टेम्परेचर को बढ़ा देगा, इस पावर लॉस के कारण टेम्परेचर को बढ़ा देगा, और ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये फिर से साइकिल इस तरह से चलता रहेगा, यानी कि आईसीबीओ बढ़ेगा, आईसी बढ़ेगा, पावर लॉस बढ़ेगा, फिर पावर लॉस टेम्परेचर को बढ़ाएगा। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है,
और इसी के थ्रू जो ब्रेकडाउन होता है ट्रांजिस्टर का, दैट ब्रेकडाउन इज कॉल्ड सेकेंड ब्रेकडाउन. दिस breakdown is called second breakdown. Clear? This breakdown is called second breakdown. This breakdown is second breakdown. Clear? तो हम लोग अब यहां पर देखिए कि टेम्परेचर बढ़ा, आईसीबीओ बढ़ा, आईसी बढ़ा, पीटी बढ़ा, फिर पीटी के कारण टेम्परेचर बढ़ता जाएगा. तो ये सेकेंड ब्रेकडाउन का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में ही है और किसी भी डिवाइस में सेकेंड ब्रेकडाउन नहीं होता है. तो मुझे लग रहा है कि आप सेकेंड ब्रेकडाउन भी समझ चुके होंगे. क्लियर? अब एक पॉइंट मैं और यहां पर मार्क कर रहा हूं कि पैरेलल ऑपरेशन ऑफ बीजेटी इज नॉट पॉसिबल. पैरेलल ऑपरेशन ऑफ बीजेटी इज नॉट पॉसिबल. अब उसका क्या रीजन है उसको हम लोग समझते हैं. पैरेलल ऑपरेशन ऑफ बीजेटी इज नॉट पॉसिबल. इसके रीजन को हम लोग यहां पर समझते हैं. मैं लिख रहा हूं पैरेलल ऑपरेशन ऑफ बीजेटी इज नॉट पॉसिबल. पैरेलल ऑपरेशन क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि रीजन इट हैज negative temperature coefficient of resistance. Because it has negative temperature coefficient of resistance. तो भाई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस से क्या अंतर पड़ता है? हम मान लेते हैं एक बीजेटी लगा दिए, उसका कुछ रेजिस्टेंस है, दूसरा बीजेटी लगाए उसका कोई रेजिस्टेंस है. यह है R1, सॉरी यह है R1, यह है R2. अब मान लेते हैं यहां से 300 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा था, इसमें से 100 एम्पियर का करंट इसके थ्रू आ रहा था, 200 एम्पियर का करंट इसके थ्रू आ रहा था, टोटल 300 का करंट फ्लो कर रहा था. क्लियर? तो इसमें करंट जो चूंकि इसमें कम करंट था तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहा होगा, इसका रेजिस्टेंस कम रहा होगा, यानी R1 इज ग्रेटर देन R2. क्लियर? अब चूंकि देखिए इसमें करंट ज्यादा है, इसमें करंट ज्यादा है, तो इस करंट के कारण क्या होगा? अब इसका निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, तो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या हो? ये करंट इसको हीट कर रहा है, ये करंट जब इसको हीट करेगा I2R लॉस इसमें अधिक होगा, तो जिसके कारण क्या होगा? इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा. इसका जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा. क्लियर? हालांकि इस केस में भी जब आप करंट फ्लो कर रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, इसके कारण R1 डिक्रीज करेगा, लेकिन ये R2 डिक्रीज ज्यादा करेगा. R2 विल डिक्रीज मोर. यहां पर करंट भी ज्यादा है, I2R लॉसेस ज्यादा है, यहां पर R2 ज्यादा अधिक डिक्रीज करेगा. तो जब ये R2 डिक्रीज करेगा ज्यादा और R1 कम डिक्रीज करेगा, तो यानी कि ये रेजिस्टेंस ज्यादा घटता जाएगा, और ये रेजिस्टेंस जब ज्यादा घटता जाएगा एक समय ऐसा होगा कि यही पार्ट 100 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और ये पार्ट 200 एम्पियर का करंट फ्लो करा रहा है. फिर बढ़ता जाएगा, ये 50 एम्पियर का करंट फ्लो करा रहा है, ये 250 एम्पियर का करंट फ्लो करा रहा है. यानी फाइनली क्या होगा कि इसकी करंट लिमिट बढ़ जाएगी और इसके कारण ये बीजेटी क्या होगा? ये बीजेटी डैमेज हो जाएगा. तो इसलिए पैरेलल ऑपरेशन ऑफ बीजेटी संभव नहीं है. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट पावर बीजेटी. क्लियर? अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मॉसफेट के बारे में डिस्कस करेंगे, पावर मॉसफेट.